artificial intelligence has grown so much and it is getting so much power that it can just automate your task in just minutes. When we talk about marketing, it basically means a right kind of product at right place at right time with right features. That's the main meaning of marketing. And right, so marketing का पहला असूल है that you will have to focus on the thing which you want to convey to your customer, right? तो इसी तरीके से हमने भी हमारी एक स्टोरी डिजाइन कर ली है. तो यहाँ पर हम इसको अगर जाके शूट करते हैं हमारे इंटरनली तो एक अच्छा आप एड क्रिएट कर सकते हो, राइट? टूल्स आर गेटिंग एडिंग अप, बट द थिंग विच विल बी इन द फ्यूचर इज विल बी द एजेंटिक एआई, और agentic AI will be the next technology will be taking up the place of generative AI in the coming days. Thank you so much, sir. First of all, I would like to thank the complete Modi University online team for inviting me in this webinar. And the main purpose for this webinar is like we will be discussing the hacks for the marketing with the generative AI that 99% people don't know. And majorly we all know what is AI. We know the AI hacks, we also know AI tools, but we don't know how to use them properly, how to link them properly. The most interesting part in the today's era is the artificial intelligence has grown so much and it is getting so much power that it can just automate your task in just minutes. In this today's webinar, we will be firstly dividing this webinar into two phases. In the first phase, I will be talking about some key points. I will be also sharing you the list of the tools with as a giveaway of this webinar. And also by the end of this webinar, you will be able to create your own AI agent. I will be making ensure that you should create one AI agent for all of you. So if we talk about very general case or in a very general scenario, what is marketing? Like if we talk about marketing, then marketing is a very big field. Like if we talk about in a very layman's say, you can see one billboard is here, which is a brand studio. So at SIN, we create brands, we also nurture brands, we also work on their digital presence. So when we talk about marketing, it basically means a right kind of product at right place at right time with right features. That's the main meaning of marketing. And without that reasons, like what I've told you, like there are four factors. One is without right time, if you will do marketing, like if you want to sell cotton clothes at the time of winters, then it will not get sold, right? Like if you want to sell the winter clothes in the summer, then also it will not sell. We will require the first pillar, which is the right time. Second thing is right product. At right time, we need a right product. So if we are like right now the GST slabs have changed, so you can see that on the motor vehicles there is a huge discount. So this is the right time of purchasing the motor vehicles. So you can see that motor vehicles के ऊपर आज कितना फायदा हो रहा है और कितनी ज़्यादा sales उस पे बढ़ रही है. So this is the example of the second factor, which is of right product at right time. And third thing is to the right customer. अब ऐसा नहीं है कि हर इंसान को बाइक खरीदनी है, हर इंसान को एक गाड़ी खरीदनी है. Everybody has its own demands and its own perspective. So आपका जो प्रोडक्ट है इज रियली मेड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, उस पर्सन के लिए वो बना हुआ है या नहीं, दैट एक्चुअली मैटर्स द मोस्ट. सो राइट प्रोडक्ट एट राइट प्लेस एट राइट टाइम एट टू अ राइट पर्सन, दिस इज द मार्केटिंग. और आज इस मार्केटिंग के अंदर ही हम लोग डिस्कस करेंगे, हम हैक्स को डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे कि कैसे आप खुद अपने घर से कैसे आप एक बेसिक मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन कर सकते हो और कैसे जनरेटिव एआई इसमें यूजफुल है. सो जितने भी लोगों ने वेबिनार ज्वाइन किया है, लाइक हैव यू जस्ट गो थ्रू अ डिफरेंट प्रोडक्ट. आपका कोई फेवरेट प्रोडक्ट का नाम आप बता सकते हो? एनीबडी फ्रॉम द वेबिनार कैन, एनी प्रोडक्ट, इट कैन बी अ मोबाइल ब्रांड, इट कैन बी एनीथिंग विच यू रिमेंबर्स द मोस्ट. एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस पोल, लाइक हु कैन टेल मी एनी प्रोडक्ट नेम, anything? Okay, let's take example of a very basic product, which is Apple iPhone. We all know about Apple iPhone, right? But we treat Apple iPhone as a status because उसकी brand identity उस तरीके से बन गई है. कभी भी हम मार्केटिंग के ऊपर बात करेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जिस पे बात करनी होती है वो होती है ब्रांड आइडेंटिटी. एक ब्रांड की क्या आइडेंटिटी है. आज सपोज आज कोई भी फोन है, लेट्स से ये फोन है, ठीक है, और एक एप्पल आईफोन है, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है. ये एक मिडिल क्लास लोगों के लिए, मेंटेलिटी के लिए लोग लेते हैं मेजरली. बट आज ऐसी चीज हो गई है कि अगर हम कोई स्टेटस वाले बंदे के पास जाएंगे तो बंदा आईफोन ही रखेगा, ठीक है. अब इसीलिए नहीं कि उसमें फीचर्स ज्यादा है कम है, हालांकि इस फोन में भी वही फीचर है, बट द थिंग इज इट इज अ स्टेटस सिंबल.
तो हमें हमारे प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केटिंग करना है, इस तरीके से करना है कि हम हमारा एक फिक्स कर सके कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है विच इज योर मार्केट नीश। आपका नीश क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, राइट। तो यहाँ पर हमने मार्केटिंग का बिल्कुल बेसिक एबीसी समझा। अब मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके जैसे कि मैं आपको एक चीज प्रेजेंट करके दिखाता हूं। लेट्स टेक एग्जांपल इन अ वेरी बेसिक से, अगर अपन किसी भी साइट पे आते हैं, लेट्स से हम एप्पल की आईफोन 17 की साइट पे आते हैं, राइट। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। ओके सो जैसे कि हम आईफोन 17 की साइट के ऊपर आते हैं और यहाँ आकर कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सो आप ये देखोगे कि सबसे पहले मार्केटिंग का जो नियम है वो है फोकस ऑन द मेन थिंग, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एप्पल आईफोन की वेबसाइट पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मेन चीज क्या है, एप्पल आईफोन। तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, उसके ऊपर उसकी कॉस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, राइट। तो मार्केटिंग का पहला असूल है दैट यू विल हैव टू फोकस ऑन द थिंग विच यू वांट टू कन्वे टू योर कस्टमर, राइट। अब वो कुछ भी हो सकता है आपके प्रोडक्ट में, हो सकता है आपके प्रोडक्ट का कोई ऐसा फीचर हो दैट यू वांट टू टेल टू द कस्टमर, आपके ब्रांड में कुछ डिफरेंशिएशन हो, देयर कैन बी मेनी थिंग्स। जैसे यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले इसने हाईलाइट्स बताया है, ठीक है। ये भी बता सकता था इसके फीचर्स क्या है वो, बट इसने क्या लिखा, गेट दी हाईलाइट्स। ये कुछ टर्म्स है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आप देख सकते हो इस एप्पल की वेबसाइट में आपको कुछ कचरा देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज नथिंग गार्बेज ओवर हियर। द थिंग इज दैट इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट इज वेरी टू द पॉइंट एंड इट क्रिएट लाइक इट्स इंटरेक्टिव टू। देखो हम इससे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको कहा जाता है यूजर एक्सपीरियंस। सो व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो यूजर इंटरफेस और एक यूजर एक्सपीरियंस। तो अभी तक हमने दो चीजें पकड़ी, पहले हमें एक राइट प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमें हमारे कस्टमर को समझना जरूरी है। आपका कस्टमर कौन है। जैसे अगर हम हमारी कंपनी की केस स्टडी लेते हैं, लेट से वी टेक द एग्जांपल ऑफ स्कूल ऑफ एआई वेयर वी टीच एआई कोर्सेज टू द स्टूडेंट्स। तो हमारा कस्टमर कौन है, हमारा कस्टमर है अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल और कॉलेज। अभी तक हमने बहुत स्पेसिफिक रखा हुआ है, या कोई इंडस्ट्री के अंदर जो ऑफिस वाला है वो, एनी ऑफिस वर्कर हु वांट टू लेवरेज। और ये सब क्या है, ये तीन हमने हमारे टारगेट ऑडियंस बना लिए। अब इसके अलावा हम कोई भी नीश को टारगेट नहीं करते, वी ओनली टारगेट स्टूडेंट नीश। तो यहां पर इससे क्या होता है, हमारा जो एफर्ट्स है, मार्केटिंग के एफर्ट्स हैं, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। और अगर एक हम वेरी बेसिक एग्जांपल लेते हैं आप सबके साथ, आज सब लोग चैट जीपीटी यूज करते हो, ठीक है, बट आज मैं आपको काफी सारे हैक्स बताने वाला हूं यहाँ पर। अब यहां पर आपको मैं बताता हूं, लेट्स से आई वांट टू लॉन्च अ न्यू कोर्स। लेट्स से मेरे को एक कोर्स लॉन्च करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मार्केटिंग कैंपेन पूरा डिजाइन कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू लॉन्च माय कोर्स ऑन वेरी बेसिक थिंग विच इज एजेंटिक एआई। लेट्स से एजेंटिक एआई एक चीज होती है, या एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ले लेते हैं जो कि हम सबसे रिलेटेबल है, ठीक है। उस पर सपोज मेरे को आई वांट टू लॉन्च एनी कोर्स, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसके पास आऊंगा, लिखूंगा यू आर एक्सपर्ट इन दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड आई हैव, और अगर आप कोर्स डिजाइन कर रहे हो, आई वांट टू डिजाइन एन 8 मॉड्यूल कोर्स ऑन दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लेट्स से मैंने इसको बोला फॉर्मेट, कोर्स टाइटल, कोर्स डिस्क्रिप्शन, और यहां मैं दे देता हूं मॉड्यूल्स ओवरव्यू, ठीक है। ऐसे करके मैंने इसको जैसे ही एंटर दबाया, आप यहां पर देखोगे यहां पर हमने प्रॉम्प्ट पैटर्न की बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज करी है, विच इज दिस इज द फ्यू शॉट टेक्निक। मतलब हम हमारे एआई मॉडल को पहले ही बता देते हैं व्हाट वी नीड, और मार्केटिंग करने के लिए पहले आपको क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में ही क्लैरिटी नहीं है, देन यू कांट डू ग्रेट मार्केटिंग। ग्रेट मार्केटर्स हैव द ग्रेट क्लैरिटी टू देयर प्रोडक्ट्स, राइट। हम आपको ये चीज में बता के आप शॉक हो जाओगे, एआई के आने के बाद जो प्रोडक्ट मार्केटिंग का जो जॉब्स है वो बहुत हद तक बढ़ गई है, बिकॉज एआई उस चीज को सिंप्लीफाई कर रहा है। बट साइकोलॉजी ओवरव्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर सोचता कैसे है। अगर किसी कस्टमर का सोचने का पैटर्न आपने डिकोड कर लिया, तो आप उसको कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कोई भी चीज सेल कर सकते हो, राइट। इसलिए को इसने मेरे को एक कोर्स का पूरा बना के दे दिया, ठीक है। अब सपोज मेरे को मार्केटिंग कैंपेन इसका डिजाइन करना है, वेरी बेसिक थिंग, राइट।
तो मैं इसको बोलूंगा यू आर ऑल्सो एन मार्केटिंग जीनियस. नाउ यू विल suggest me an marketing campaign. अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, मार्केटिंग कैंपेन बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, बहुत चीजें हो सकती है उसमें. हो सकता है आपको कहीं होल्डिंग्स लगानी हो, यू हैव सीन दी पोस्टर्स, यू हैव सीन दी इंस्टाग्राम पोस्ट, वो अलग अलग मार्केटिंग होती है. कोई डिजिटल मार्केटिंग भी होती है, ठीक है. देयर इज वन मोर विच इज दी ऑन ग्राउंड मार्केटिंग, आप ग्राउंड के ऊपर जो करते हो. सर्वे बेस्ड मार्केटिंग होती है. देयर आर मेनी काइंड ऑफ मार्केटिंग थिंग्स. बट मेरे को किसका कैंपेन डिजाइन करना है? लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ सोशल मीडिया कैंपेन, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन. तो यहां पर अब क्या हो रहा है गाइस, यहां पर बहुत ढंग से देखना, एवरीबडी ऑफ यू लिसन टू मी वेरी प्रॉपरली. कि द थिंग इज कि यहां पर आप देखोगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का कैंपेन मेरे को यहां पर डिजाइन करना है. तो मैं ये कैसे कर सकता हूं? मैं इसको पहले बताऊंगा मेरी ऑडियंस क्या है. तो मैं लिख दूंगा अबाउट माई ऑडियंस, अबाउट माई टारगेट ऑडियंस सबसे पहले. और मेरे टारगेट ऑडियंस में कौन आ जाएगा? लेट्स से आई वांट टू क्रिएट स्पेसिफिकली दिस प्रोडक्ट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है. मैंने बहुत स्पेसिफिकली बता दिया मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, स्कूल स्टूडेंट्स है. नेक्स्ट थिंग क्या है? आई वांट टू डिजाइन एन इमोशनल ड्रिवन मार्केटिंग कैंपेन. मैंने लिखा एक इमोशनल ड्रिवन मार्केटिंग कैंपेन होना चाहिए, क्योंकि देखो चीजें हमेशा 3 इमोशंस ऐसे हैं जो कभी भुलाए नहीं भूलते. पहला लव, अगर आप किसी भी एड में लव का एलिमेंट डालते हो वो कोई नहीं भूलेगा. सेकंड, अगर आप किसी की अंदर एनी फियर डालते हो, डर या कुछ ऐसे हॉरर एलिमेंट डालते हो, कोई नहीं भूलता. थर्ड थिंग जो कोई नहीं भूलता विच इज कॉमेडी, कॉमेडी कोई नहीं भूलता. ये कुछ ऐसे इमोशंस हैं और जो कोई नहीं भूलता. मतलब हर एड में आप उसको देखोगे. जो सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स हैं उनमें इमोशंस जरूर होते हैं. और आपको अगर टेस्ट करना है ना कि आपका कैंपेन कितना सक्सेसफुल है, तो आप ये चीज देखें कि आपके एड को लोग कितना शेयर कर रहे हैं आपस में, ठीक है. और जैसे मैंने यहां पर लिखा, आई वांट इमोशनल ड्रिवन कैंपेन स्टोरी बेस्ड, ठीक है. एंड नाउ जनरेट दी मार्केटिंग प्लान. अब यहां पर हमें थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा. सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन किस चीज के लिए स्पेसिफिकली बताना है, ठीक है. जैसे अब आप सोचिए, अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो तो स्कूल स्टूडेंट ज्यादातर अपना समय कहाँ यूज करते हैं, ये आपको सोचना है. तो स्कूल स्टूडेंट ज्यादातर अपना समय यूज करते हैं इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, फॉर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां पर कॉलेज स्टूडेंट्स का आता तो फिर आता इंस्टाग्राम और लिंक्डइन. अगर यहां पर हम कुछ डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करते, लेट्स से इफ वी आर गोना टारगेट द ऑडियंस लाइक अबव 40 और अबव 30, देन फेसबुक इज द बेस्ट ऑप्शन. लिंक्डइन और फेसबुक का अच्छा कॉम्बिनेशन है. तो हर प्रॉपर ऑडियंस के हिसाब से एक अलग ऑडियंस होती है, ठीक है. हर मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से हमें एक अलग ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ती है. हैव यू गॉट माय प्लान? ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है. और ये होने के बाद आपको क्लिक करना है जनरेट के ऊपर, ठीक है. बट उससे पहले हम यहां पर एक और चीज करेंगे. आई वॉन्ट दिस ऑल इन दी कैनवास फॉर्मेट, है ना. मेरे को कैनवास फॉर्मेट में चाहिए. अब कैनवास क्या चीज है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. जैसे ही मैं आके इसको नेक्स्ट करूंगा, देन यू गोना सी द थिंग कि इस तरीके से यहां होने लग जाएगा, राइट. तो देखो इसने मेरे को एक प्रॉपरली ओवरले दे दिया विच इज वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है. तो इसने देखो मेरे को पूरा एक प्लान जैसा बना के दे दिया है, जिसको आप यहां पर देख सकते हो, राइट. इसने मेरे को टाइटल दे दिया, बी द बेस्ट ऑफ यू इमोशनल स्टोरी टेलिंग कैंपेन. अब यहां पर क्या होगा, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए आप चाहो तो इसको क्लिक करके बड़े में ओपन करके भी देख सकते हो, राइट. आई होप दैट दिस थिंग विल बी विजिबल टू यू ऑल. कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इमोशनल कनेक्शन के लिए. टारगेट ऑडियंस क्या है, एज ग्रुप हमने जैसे 13 से 18 लिए नॉर्मली यहाँ पर. देन यू कैन सी द पेन पॉइंट्स, बच्चों के पेन पॉइंट्स क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पीयर प्रेशर. ये प्रोडक्ट के हिसाब से है. हमेशा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही पॉपुलर मार्केटर है, उनका एक बहुत अच्छी चीज कहनी थी
उन्होंने कहा था दैट यू विल हैव टू क्रिएट अरे वाह मूवमेंट इन दी कस्टमर। इसका मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट जाके प्रोडक्ट सेल नहीं करना, यू हैव टू सबसे पहले उससे कनेक्ट करना है, उसके पेन पॉइंट्स को समझना है और उसके पेन पॉइंट्स को उसी को बड़ा करके बताना है। और जब वो एकदम परेशान हो, अपने पेन पॉइंट में फंसा हुआ हो, एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू ब्रिंग योर सरप्राइज प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ देम। और ये चीज हमेशा वर्क करती है। पहले आपको अपने कस्टमर को समझना होगा, कस्टमर को समझने के बाद दूसरी चीजें आती है, कैसे ऐड बनेगा, क्या नहीं बनेगा। इफ यू आर नॉट क्लियर विद द प्रोडक्ट तो आप कस्टमर सेलेक्ट नहीं कर सकते। इफ यू आर नॉट क्लियर विथ योर कस्टमर तो आप राइट प्रोडक्ट बना नहीं सकते। एंड इफ यू कैन राइट प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते तो आप कभी इनकम जनरेट ही नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहली चीज यही है कि हमें टारगेट ऑडियंस पकड़ना है। ठीक है, अब कोर्स स्ट्रेटेजी इन्होंने क्या बोली, दैट हमें शॉर्ट स्टोरीज बनानी है। ठीक है, इंस्टाग्राम क्राउजल चैलेंजेस हम सबको पता है। अब जैसे थीम क्या है, यहाँ पर देखो कुछ इन्होंने स्टोरी आप बता दी मेरे को इसने कि एक शाय स्टूडेंट की जर्नी, जो स्टूडेंट ज्यादा थोड़ा हमें से आप में से सब लोग ये कनेक्ट कर सकते हैं कि हम स्कूल्स में जब होते हैं तो एकदम बहुत सारे अपने साथ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें थोड़ा ग्रेजुअली कम फील करवाते हैं या एज अ लो फील करवाते हैं, तो उसके थ्रू फेलियर्स टू कम बैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी स्टोरीज हमारे सामने है। अब आपको जो इसमें से स्टोरी पसंद आए आप उसके ऊपर जाके, आपको कुछ भी नहीं करना। लेट्स से जैसे मैं इसमें से अगर स्टोरी सेलेक्ट करता हूं एवरीडे हीरोज की, ठीक है, या फ्रॉम फेलियर्स टू कम बैक, तो मैं यहां पर लिखूंगा आई एम सेलेक्टिंग द स्टोरीज विच इज फ्रॉम फेलियर टू कम बैक एंड नाउ क्रिएट। अब ध्यान ढंग से देखना, क्रिएट द स्टोरी टाइटल, स्टोरी थीम, स्टोरी कैरेक्टर्स, ओवरव्यू, और फिर आ जाएगी एंड में अपनी स्क्रिप्ट्स। ठीक है, जैसे ये चीज हुई यू गोना सी कि इसने आपका पूरी चीज को आपके सामने वापस दे देगा। देखो आपका पूरा स्टोरी आग इसने दे दिया, स्टोरी का थीम क्या होगा, 4 कैरेक्टर्स होंगे। तो आप देख सकते हो हमने अभी ही पूरी एक स्टोरी डिजाइन कर ली, और जैसे ही आपको अपनी परफेक्ट स्क्रिप्ट मिले यू आर रेडी टू गो फॉर द मार्केटिंग। तो ये जो पहली स्टाइल ऑफ मार्केटिंग है विच इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग, ये सबसे ज्यादा यूज होती है और इसका हम एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जिसको आप जरूर टेक अ लुक ओवर दैट। ये मैं आपको बताऊंगा गूगल ने भी ट्राई किया था। लेट्स से मैं ये एड प्ले करता हूँ, यू विल एक बार प्लीज कंफर्म करना कि ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही है इसकी। इज द ऑडियो इज कमिंग? ऑडियो आ रही है इसकी? No, no, it's properly coming, Mr. Hers. आ रही है Your सर? audio नहीं, is correctly coming. Yes, yes. ओके सर, ये एड की ऑडियो आ रही है ना सर? बस वही कंफर्म करना था। Can you play again? या श्योर। Audio is not clear from this particular advertising. Let me play it again in case it's not audible. Yeah. Now it's audible. नहीं, अब it's still not clear.
I request please share this particular link in chat box so everyone can visual because audio was not clear very properly. No issues, sir. Like I have shared with the, I shared this. So यहाँ पर the best thing which we can notice is कि इस ad में कहीं पे भी ये mention नहीं था that ये गूगल का एड है या कुछ ऐसा है. द थिंग इज कि उसका यूज केस दिखाया गया विद एन इमोशनल सब्सटेंस. तो इस टाइप ऑफ एड अगर हम क्रिएट करते हैं इन द मार्केटिंग देन इट्स ऑफ ग्रेट यूज. तो आप ना खुद ये चीज देख पाओगे कि ये जो एड था इसने आप इसके आप व्यूज अगर आप खुद देखोगे एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि 16 मिलियन व्यूज तक ये ऐड गया था. और इसका मतलब ये है कि हम इंडियंस हैं तो हम ज्यादातर इमोशन से कनेक्ट करते हैं. तो द बेस्ट थिंग इज कि हम कोई भी प्रोडक्ट या किसी के भी कुछ डिजाइन करने की कोशिश करें देन वी शुड ऑलवेज गो फॉर देयर काइंड ऑफ एन इमोशनल सब्सटेंस. आपको अपने प्रोडक्ट को नहीं बताना है. प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, एक्सपीरियंस को बेचा जाता है, उसको यूज करने के फीचर को बेचा जाता है. तो हमेशा हमें उस तरीके की चीजों के ऊपर ही वर्क करना होगा अल्टीमेटली, राइट. तो इसी तरीके से हमने भी हमारी एक स्टोरी डिजाइन कर ली है. तो यहाँ पर हम इसको अगर जाके शूट करते हैं हमारे इंटरनली तो एक अच्छा आप ऐड क्रिएट कर सकते हो, राइट. जैसे देखो इसने एक हैशटैग भी दिया है, बी द बेस्ट ऑफ यू. तो अभी हमने हमारा प्रोडक्ट बनाया, अभी हमने हमारा मार्केटिंग कैंपेन भी पूरा डिजाइन कर दिया, ठीक है. तो ये चीज है. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है क्योंकि मैंने आपको कहा था कस्टमर को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो चीज मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर एक नई टर्म आप सबसे इंट्रोड्यूस करूंगा मैं विच इज नोन एज कस्टमर पर्सोना. आपको पहले जानना होगा कि आपका कस्टमर कौन है. और जब आपने ये जान लिया कि आपका कस्टमर कौन है उसके बाद आपकी नेक्स्ट चीज आती है विच इज क्रिएटिंग द पर्सोना. पर्सोना क्रिएट करना. अब यहां पर आप में से सब लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि पर्सोना क्या चीज होती है, राइट. देखो क्या होता है, आप ये समझ सकते हो. लेट्स से आप एक एग्जाम्पल ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला कोर्स ही ले लेते हैं. सपोज हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स सेल करते हैं, राइट. तो आज मेरे को 1000 लोगों को जाके नहीं बेचना. पहले मेरे को ये सोचना है, सपोज मेरे को एक थियोरेटिकल कैरेक्टर लेना है. लेट्स से मैंने एक कैरेक्टर ले लिया विच इज राम. तो अब मैं राम के क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि ये मेरा एक अच्छा कस्टमर होगा. मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से मैं मेरे कस्टमर की और क्लैरिटी में जा रहा हूँ, ठीक है. जब आप एक पर्सोना क्रिएट कर लेते हो तब आप और अच्छा मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन कर सकते हो. तो हमेशा पहली चीज के ऊपर जाना है विच इज पर्सोना. चाहे आप मार्केटिंग में किस भी फील्ड पे काम कर रहे हो, एट एनी लेवल यू आर, इट डजंट मैटर. द ओनली थिंग विच मैटर्स द मोस्ट इज द क्राफ्टिंग द परफेक्ट पर्सोना. और एग्जैक्टली इसी चीज को बनाने के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज लेके आया हूँ विच इज वन मोर थिंग, जनरेटिव एआई. अब यहाँ पर जेन एआई का हम यूज करेंगे. अभी तक हमने जनरेटिव एआई का यूज किया है. हम चैट जीपीटी को जो यूज करते हैं दैट इज जनरेटिव एआई. और जैसा इसका वर्ड है जनरेट करना, इट एक्चुअली जनरेट्स द थिंग्स बाय यूजिंग द डेटा. जो पुराना डेटा पे ट्रेंड होता है लाइक चैट जीपीटी और वो सब. इसी के अंदर एक फील्ड होती है विच इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो कि अभी आपने जस्ट देखा, मैंने उसको यूज करके बताया. अब हम पर्सोना कैसे क्रिएट करेंगे यूजिंग जनरेटिव एआई वो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट. तो यहाँ आपके लिए मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स लेके आया हूँ, ठीक है. अब मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट बताने वाला हूँ. सो आपको करना कुछ नहीं है, आपको SIN टेक्नोलॉजीज की साइट के ऊपर आना है. मैं ये भी लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ. और आगे आपको लिखना है प्रॉम्प्ट लैब. हमने स्पेसिफिकली प्रॉम्प्ट लैब क्रिएट करी है इन ऑर्डर टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. हमने आपके लिए पहले से ही कुछ प्रॉम्प्ट्स बना के रखे हैं जिसको आप रेडी टू यूज कर सकते हो, राइट. आपको जस्ट नीचे आना है. यहाँ पर देखो ऑडियंस पर्सोना के लिए हमने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है. जस्ट यू हैव टू गो देयर, क्लिक ऑन एक्सप्लोर. तो यहाँ पर आपके सामने पूरा एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा. आपको जस्ट इस प्रॉम्प्ट को नीचे से कॉपी करना है, राइट. फिर आपको करना कुछ नहीं है. अगेन यू हैव टू गो एंड कम ऑन द चैट जीपीटी. जैसे ही चैट जीपीटी के आओ सिंपली आपको ये पूरा प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, ठीक है. अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है. अब ये चीजें मेरे उस वाले चैट में ऑलरेडी ओपन है इसलिए मैं आपको वहां यूज करके बता रहा हूँ, ठीक है. मैं इसको क्लोज करूंगा. और अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर PDF के रूप में या किसी के भी रूप में, ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रख लिया. अब अगर मेरे को इसके ऊपर पूरा डिजाइन करना है, लेट्स से अब मैं इसको पूरा डिजाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने सिंपली ये प्रॉम्प्ट प्लेस कर दिया, ठीक है. अब मेरा प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैं ऊपर आऊंगा, मैंने यहाँ पर नाम लिखा था ऑलरेडी, ये मेरे प्रोडक्ट का नाम है. तो आई विल बी कमिंग देयर, कॉपिंग इट और आके मैंने यहाँ पर सिंपली प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिख दिया. एक सेकेंड.
लेट मी अगेन कॉपी इट। इधर हम आएंगे, इसको वापस कॉपी करेंगे और यहाँ आके ये प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर लिखने की जगह है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए। ये डिस्क्रिप्शन है इसका, तो आई विल बी कॉपिंग इट और ये यूं का यूं मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी देखो ये मेरे से पूछ रहा है इंडस्ट्री और नीश क्या है आपकी। आप थोड़ा नीचे आओगे, इंडस्ट्री और नीश क्या है, तो मैं कह दूंगा एजुकेशन। और यहां पर ये मेरे से पूछ रहा है आपका टारगेट मार्केट लोकेशन क्या है। लेट्स से अब मैं लोकेशन सेलेक्ट करता हूं इंडिया, वेरी बेसिक इंडिया लेते हैं। प्राइस रेंज क्या हो सकती है आपके प्रोडक्ट की, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मैं कहता हूं ये प्रोडक्ट को मैं 3000 रुपीज पे रैंक करूंगा। कॉम्पिटिटर है कोई आपका, अगर नहीं है तो आई डोंट नो मच लिख दीजिए। और जैसे अगर यहाँ पर अपन आते हैं बिजनेस गोल क्या है, ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन, आप क्या करना चाहते हो। लेट्स से मेरे को अभी ब्रांड अवेयरनेस करनी है एंड सेल्स। ठीक है, डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, ये सब निकाल लेगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको जाके जनरल शेयर करना है। जैसे ही आप ये शेयर करोगे, अब इस कोर्स के लिए पूरा इसने क्या करा है, एक पूरा पर्सोना बना के दे दिया। एज क्या हो सकती है आपके कस्टमर की, इतना, मेल फीमेल, बैलेंस्ड ऑडियंस, टायर 3 सिटीज बता दी, ऑक्यूपेशन बता दी, इनकम लेवल बता दिया। आप कोई भी बड़ी कंपनी में जॉब रोल के लिए अप्लाई करोगे ना विद द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, द बेस्ट थिंग विच दे विल बी रिक्वायरिंग इज दी दिस ऑल फैक्टर्स। आपका पूरा पर्सोना बनाना आपको आना चाहिए किसी भी कस्टमर का। तो यहाँ देख सकते हो साइकोग्राफिक्स आ गए सारे, लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट, हॉबीज उसकी क्या हो सकती है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पेन पॉइंट्स आ गए उसके कि उसके क्या क्या लोगों में प्रॉब्लम होगी। आपको यही पेन पॉइंट्स के ऊपर तीर मारना है। आपको इसी पेन पॉइंट्स को और मैग्नीफाई करके अपने कस्टमर को बताना है कि इसकी वजह से आपको आगे फ्यूचर में कितना लॉस हो सकता है। जो आप स्टोरीज बनाओ सब कुछ इस पेन पॉइंट्स के अराउंड बनेगी, राइट। और जब आप इस चीज को बना देते हो, ठीक है, उससे उसको क्या क्या फायदा होगा, ये उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, सेल्फ एस्टीम मिलेगी, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। बाइंग बिहेवियर, कैसे आपका कस्टमर का बाइंग बिहेवियर है, कैसे वो प्रोडक्ट खरीदता है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट यूट्यूब पे रिव्यूज देख के खरीदता हो सकता है वो एड के थ्रू खरीदता हो। हर आदमी के खरीदने का पैटर्न अलग होता है। जैसे मेरा कोई फ्रेंड अच्छी चीज लेके आता है तो मुझसे पूछता हूँ कि भाई तू ये अच्छी चीज लाया है तो ये कितने में लाया, कैसे लाया, कहाँ से लाया। हर आदमी का खरीदने का एक पैटर्न होता है। दिस इज द साइकोलॉजी पैटर्न ऑफ मार्केटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। फिर प्रीफर्ड चैनल जहां पर आपको टारगेट लगे, जैसे देखो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, मैंने आपको पहले ही कहा था इंस्टाग्राम और यूट्यूब आएगा, देख लो यहाँ पर वो भी आया। आप उनके पास कैसे रीच कर सकते हो, थ्रू वेबिनार्स, कॉलेज इवेंट्स, वेबसाइट्स, लर्निंग एप्स, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, डिसीजन मेकिंग, प्राइस सेंसिटिविटी, क्वालिटी, ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। तो देखो यहाँ पर एक पर्सोना स्नैपशॉट आ गया। अब इसने एक सैंपल कस्टमर बना दिया, इसी को पर्सोना कहते हैं। मीट आरव, 19 ईयर, a college student from Jaipur, is intelligent but freezes during presentations. His classmates tease him for being too quiet and feels overshadowed. अब इसने देखो एक पूरा उसके बारे में बता दिया कि आपका एक कस्टमर दिखेगा कैसे। आप चीज समझ गए, और इससे ही आप अब अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट आगे डिजाइन कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग ऑन ऑडियंस पर्सोना। यहाँ हमने जेन एआई का भी यूज किया, सब चीजों का यूज किया, राइट। अब मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक चीज लाया हूँ, स्पेसिफिकली फॉर यू ऑल, बिकॉज यू ऑलवेज बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस टू मी एंड कंप्लीट मोदी यूनिवर्सिटी टीम इज वेरी क्लोज टू मी। तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ टूल्स इकट्ठे करे, लाइक देयर आर अराउंड 50 टूल्स विच आई बॉट फॉर यू। ये मैं आपको लिंक दे दूंगा इस शीट का, इसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हमने आपके लिए स्पेसिफिकली ये टूल बनाया है। यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। जो आप देख रहे हो ना, जो आप ये येलो कलर से हाईलाइट हुए हैं, दीज ऑल टूल्स आर वेरी ग्रेट टूल, जिसको पर्सनली मैं खुद यूज करता हूँ। जैसे सपोज आपको कोई अपना मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ल्यूमी के ऊपर आ सकते हैं। ल्यूमी एआई एक ऐसा टूल है जहाँ के ऊपर आके आप इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब जो अच्छी अच्छी इमेजेस होती है, राइट। जैसे सपोज अगर मेरे को किसी स्टूडेंट के लिए मार्केटिंग कैंपेन करना है तो मेरे को आके यहाँ पर स्टूडेंट लिखना है। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर सारी इमेजेस जो है वो एआई से जनरेटेड है। देखो आप यहाँ से इन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो और अपने मार्केटिंग कैंपेन में यूज कर सकते हो। सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या ऐसे ओपन करके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑन यू। हाई क्वालिटी इमेजेस यहाँ पर आपको मिल जाएगी बहुत ही, और सारी इमेजेस एआई के थ्रू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और टूल्स है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, विच इज द गामा। आई होप गामा आप सब यूज कर चुके होंगे इन द प्रेजेंटेशंस, ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। नोशन है,
नोशन आई होप अगर किसी ने यूज नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ. द नोशन इज वेरी क्लोज टू मी बिकॉज यहाँ पर आप सारे अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को सेव करके रख सकते हो. किस वे में? लेट मी शो यू. आपको करना कुछ भी नहीं है. आई विल बी कमिंग अगेन बैक टू दी. मैं आपको वापस रिप्रेजेंट करूंगा स्क्रीन. लेट मी कंफर्म दैट इट इज विजिबल. श्योर. सो इट इज विजिबल टू मी. तो यहाँ पर आप देख सकते हो. आपको सिंपल आके यहाँ पर लॉगिन करना है. मैं मेरी ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लूंगा. तो नोशन कुछ आपके सामने इस तरीके से आपके सामने ओवरव्यू आएगा नोशन का. अब व्हाट यू हैव टू डू सिंपल. यहाँ पर आपको सिंपल आके न्यू पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आके आपको लिख देना है लेट्स से ऑडियंस पर्सोना. या लिख देता हूं पर्सोना. इसको मैं बंद करता हूं एक बार. ये यहां से लेट मी क्लोज दिस. तो यहां पर आके आप अपना टाइटल लिख सकते हो. लेट्स से हमने जो ये बनाया है पूरा पर्सोना स्नैपशॉट, इसको ही हम यूज कर लेते हैं. आई विल बी कॉपिंग दैट और यहां पर हमने क्लिक कर दिया. सिंपल. और ये पूरी चीज को आप कॉपी करके यहां पर सेव करके रख सकते हो. और इसका बेस्ट पार्ट ये है गाइस कि आप यहां से ये सारे जो भी नोट्स क्रिएट करते हो ना, इसको यहां से आप शेयर भी कर सकते हो. ठीक है. करना कुछ नहीं है. यहां पर आपको आके सिंपली शेयर पे आके यहाँ पब्लिश का बटन आता है. पब्लिश पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है. पब्लिश करने के बाद जैसे ही आप इसको पब्लिश करोगे, आप इसको एज अ वेबसाइट रूप में देख सकते हो. आप अपने इंटरव्यूअर को, मार्केटर को, सबको शेयर कर सकते हो. एंड दिस इज द बेस्ट टूल फॉर ऑल ऑफ यू. राइट. सो आपको नोशन का भी एक ओवरव्यू दे दिया. सो ये सारी चीजें मिला के आपका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस क्रिएट करती है. देयर आर मोर टूल्स टू ट्राई. आप जाके इसको जरूर ट्राई करना. ठीक है. मतलब इसमें बहुत अच्छे अच्छे टूल्स मैंने. मार्केट रिसर्च करनी है देन परप्लेक्सिटी इज द बेस्ट टूल. आप परप्लेक्सिटी के थ्रू मार्केट रिसर्च कर सकते हो. बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको पर्सोना मेथड बताया. अगर मेरे को यहाँ पर स्कूल्स की लिस्ट चाहिए, लेट्स से आई वांट द स्कूल लिस्ट. आई वांट एन स्कूल लिस्ट विथ एन लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, विथ इन कॉलम्स नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, स्कूल नेम और यह हमने दे दिया स्कूल वेबसाइट. तो ये चीज मैं डाल दूंगा यहाँ परप्लेक्सिटी के ऊपर. ठीक है. मैंने इस पे डाल दी और मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा जोधपुर स्कूल लिस्ट बिकॉज आई एम इन द राइट नाउ जोधपुर. तो मैं देखूंगा कि मेरे को देता है क्या. तो परप्लेक्सिटी जो है ये मेजरली बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू द मार्केटिंग. तो इसने देखो मेरे को सारी स्कूल्स का नाम दे दिया विथ उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स दे दिए और जिन जिन की वेबसाइट इसको मिली उसने दे दी, जिन जिन की नहीं मिली उसने उसके आगे एनए लिख दिया. तो दिस लाइक दिस यू कैन डू द स्क्रैपिंग फ्रॉम डेटा स्क्रैप करना बिकॉज अल्टीमेटली इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. अगर आप खुद ढूंढने जाओगे आपको बहुत समय लगता है, बट परप्लेक्सिटी इज गुड व्हेन इट्स कम टू द मार्केट रिसर्च. तो ये सारे टूल्स की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा. और एक और चीज जो हमारी तरफ से मैं आपको देना चाहता हूं विच इज दी AI डायरी. तो इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा AI डायरी का. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टूल और इस टूल के थ्रू आप अपने सारे AI टूल्स को मैनेज कर सकते हो. ये हमारी कंपनी ने डेवलप किया है. सिंपली यू हैव टू गो एंड साइन इन. अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा और अपने ईमेल पे कंफर्मेशन लिंक आएगा, कंफर्म करना पड़ेगा. और एक बार कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पर आके सिंपली साइन इन कर सकते हो एंड इट्स वेरी गुड. तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप अपने AI टूल्स का खुद का कलेक्शन बना के रख सकते हो. जैसे मैंने खुद का एक कलेक्शन बनाया हुआ है. लेट्स वीडियो एडिटिंग में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ मेरे जो मैं टूल्स यूज करता हूँ ये सारे मेरे सामने आ गए. ठीक है. आप अपने नए नए टूल्स यहाँ ऐड कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इन दी PDF फॉर्मेट. तो ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप बहुत सारे AI टूल्स के आसपास रहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. राइट. सो दिस ऑल रिसोर्सेज आर फॉर यू. मैं इन सबका लिंक आपको शेयर कर दूंगा और आई होप आपने काफ़ी सारी चीज़ें आज सीखी और समझी होगी. ये सारी चीज़ें आपको मैं दे दूंगा. एंड दिस इज द QR. अगर आप गिव अवेज भी आपके लिए कुछ हमने रखे हैं, यू कैन स्कैन एंड यू कैन टेक द गिव अवेज. ओके. आई विल बी शेयरिंग दिस कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑल्सो विथ यू ऑल, जिससे आपको सारी रिसोर्सेज और सारी चीज़ें मिल जाए. दिस इज द QR लिंक और दिस इज आवर कम्युनिटी लिंक विच यू कैन ज्वाइन ऑफ, जहाँ पर AI के अपडेट्स हम डालते रहते हैं. लेटेस्ट जो भी AI अपडेट्स होते हैं
These are the job opportunities in AI. जो आगे future job opportunities आएगी AI में वो सारी यहाँ पर आ जाएगी. This is my Instagram account. इससे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट AI न्यूज़ और अपडेट्स के लिए. ये मेरा LinkedIn प्रोफाइल है. थ्रू LinkedIn ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विथ मी. सो दैट्स ऑल. आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको काफ़ी मजा आया होगा. थैंक यू सो मच सर. आई विल बी शेयरिंग यू ऑल द रिसोर्सेज सून. That's all, sir, from my end. I hope you like this session. Thank you so much. Such an insightful session. And I would like to ask questions from the audience side. I would like to ask questions from audience audible? side. If participants, if you have any questions, feel free to ask in a chat box or Hello. unmute your mic. You can ask questions with Mr. Harsh Purohit. He will guide you how to use current Sir, trends of marketing, hello. I how think to voice is use not AI. coming, sir. Hello, my voice is coming properly. Hello, am I audible to all of you? Ankush, sir. Yes, sir, you are audible. Okay, thank you so much. So, all the participants, please, you may ask questions if you have any doubt related to today's seminar. If you have curiosity to know more about the AI, current trends of the market, as we learned today, it's a very important session like market basket analysis. That is a concept behind the complete seminar. And I would like to ask few questions after the participants. If you have any questions, feel free to ask in such a good manner. Mr. Harsh has presented. Please ask questions. If anyone have any question, please raise your hand. Good afternoon, sir. I just want to know what strategies can bridge the gap between online and offline touchpoints to create a seamless customer journey. Can you please repeat? Hello. Yeah. What strategies can bridge the gap between online and offline touchpoints to create a seamless customer journey? Okay. So you want to just want to know that how we can bridge the gap between the online and offline education, right? If I'm not Yes. wrong. Yeah. Okay. So firstly, as I have mentioned in the session, like we will have to just right now want to understand the psychology of our customer. Like if we talk about an online attendees, then majorly the person who joins the online classes and all, they don't have much of the time to attend the offline thing, and they are very much busy in their other tantrums. So what the thing which they can do is like we can create the webinars like you are organizing. We can create online challenges which they can fight with their work thing, because the thing which is very important is to make them engaged. By using this ad story narratives, we will have to first of all focus on the placements too, because this is a very serious audience which also joins from the online because they want to upskill in their career. So we can do one thing, our ad campaigns and majorly things should focus on the number of placements and internships and job opportunities, how this particular thing can help them to ensure they can get a good job opportunities, and that particular thing will help more to get more traction, because there is no institute in India which is right now focusing on placements and all. They all are focusing on number of admissions and all, but if we will want to focus on the placements, the companies, the industry exposure, then it will be a great journey for us. Okay. Thank you so much. Thank you.
Mr. Hers, I have one question. I hope Definitely. I'm audible to all of you. Yeah, Ah, sir. actually, today in today's session, I learned a good thing that is called emotional connect with the data and emotional connect with the trending in market. Right? Yes, sir. Whatever my need is there, it will be fulfilled with the help of technology. Right? Definitely. So, how historical data is very really useful to use such kind of tools which are available, how we can be make more user friendly by the using of historical data, market basket analysis, as you have already exposed there, that how practically we can connect with our social media, our trending, our choices, our we can customize our things in a proper manner. So kindly elaborate that how historical data is really very important for the access point of view, for the serving point of view, and for the decision making in future as well. Definitely, sir. Like you have very given the great point, which is the historical data analysis. And we all know in India, like if we talk about the movie development, if we talk about very basic, which is the movie development, तो जब भी हम किसी मूवी को देखते हैं, आज पुष्पा और जो KGF जैसी मूवीज हमारे आसपास बनती है, आप एक चीज नोटिस करना सर, हमारे जो पुरानी बॉलीवुड मूवीज बनती थी जिसमें अमिताभ बच्चन हुआ करते थे, वो सब हुआ करते थे, वो कुछ आज हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से हमें वो ग्रैंड लग रही है, बट स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ये देखोगे कि पुरानी जो बॉलीवुड मूवीज थी उनकी स्टोरी काफी हद तक अच्छी थी। आज की जो नई मॉडर्न टॉलीवुड मूवीज जो आ रही है लाइक पुष्पा, KGF एंड ऑल, सो यहाँ पर ये चीज हुई क्यों? द थिंग इज विच इज दैट जो साउथ इंडस्ट्री है, इट्स रियली वर्किंग ऑन द हिस्टोरिकल डेटा कि पुराने टाइम में क्या चीज सबसे ज्यादा वर्क करती थी। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं सर, फर्स्ट विल हैव टू डिफाइन द पर्सोना। अगर हमें एक बार कस्टमर का पर्सोना मिल गया तो हम हमारे फिर नेक्स्ट जो एनालिसिस करेंगे विच इज द मार्केट बास्केट एनालिसिस विच यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, हम मार्केट में देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ऑडियंस पर्सोना को टारगेट करते हुए पहले कौन कौन से ऐसे मार्केट कैंपेन्स बन चुके हैं विच वी कैन इजीली डू यूजिंग द परप्लेक्सिटी। हम परप्लेक्सिटी के थ्रू और पता कर सकते हैं लाइक विच आर द इमोशनल मार्केट ड्रिवन एड्स फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, लेट्स से अगर विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज, अगर हम इस तरीके से एनालिसिस करते हैं तो हमें एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाती है कैसे कैसे एड्स डिजाइन हो चुके हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो मिरिंडा, हॉर्लिक्स, इन्होंने पहले से ये चीज करी हुई है। इनकी स्टडी करके हम खुद हमारा एडवर्टीजमेंट डेवलप कर सकते हैं सर। और यही है हिस्टोरिकल डेटा जो आपने कहा। देखो जैसे 2017-18 का डेटा से हम चीजें निकाल रहे हैं। सो लाइक दिस वी कैन गो फॉर, बट द थिंग विच विल बी वेरी यूजफुल इज द पर्सोना। विदाउट पर्सोना द मार्केटिंग नेवर स्टार्ट्स। We'll have to first decide the persona in which we are targeting. Thank you so much, Mr. Hers. I have another question. That is, suppose we are using AI tools as well as using in the purpose of content design as well as in education sector. Not a single sector which is untouched today by the help of machine learning. Yes, So sir. I have one question. What is the future and what is the next upcoming technology which will take a place? As you already discussed somewhere that generative AI is now over. Yeah. Now, upcoming, what kind of technology will take a place in market? What kind of customers can be get more benefited by the technology, by the new revolution of IT in coming days? Kindly enlighten something in that area. Definitely, sir. So, as you have mentioned that generative AI has already taken place, you can see like if we go for this particular list, so you can see there are 50 tools mentioned only for the tools usage of marketing. So we know that every day the new AI tools are getting adding up, but the thing which will be in the future is will be the agentic AI, or agentic AI will be the next technology will be taking up the place of generative AI in the coming days. I have created one thing for you which is the Mind Studio. You can go and at the Mind Studio. In the coming sessions of webinar, we'll be also taking up on the AI agents, how we can build AI agents. Agentic AI will be the next currency when it's come to AI, and every big MNC, every agency is targeting on building the great AI agents. Even if you go on ChatGPT 2, sir, there's also an option which comes, which is the agent mode. So the next technologies which will be available in the market and which will be taking up is the agentic AI. Understanding is like this. Right now in the marketing company, there are 4 roles. We will have to do market research. You have to create the marketing campaign.
but agentic AI tools all do complete this task by creating the simple flow chart or simple workflow. The agent will work, let's say कि 9 बजे आपको एक न्यूज़ की समरी चाहिए एवरी डे, सो आपका एजेंट रोज 9 बजे जाएगा, सारे इंडस्ट्री की समरी लाके आपको दे देगा. और इवन काफी हद तक लोगों ने ये भी किया है कि उसकी वीडियो बना के भी अपलोड कर देता है, एजेंट खुद अपलोड कर देगा. तो दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन पावर ऑफ एजेंटिक एआई व्हिच विल बी इंपॉर्टेंट इन कमिंग डेज. Very nice. Yes. Participants, if you have any questions, please ask. So thank you very much, Thank you so much, Mr. sir. Harsh, for accepting our invitation. So nice way you have delivered today's session. On behalf of Modi University Center for Online and Distance Education, Dr. Reva Misra here, Director Online, give a vote of thanks on behalf of entire staff. Yes, sir. You have presented very well, step by step implementation of good trends, knowledge, market trends, branding, promotions, everything you can do with the help of technology. We have to know the power of technology because tomorrow is the way, tomorrow is the future of technology. We are all surrounding the technology. You are a man of AI, machine learning, and the brand ambassador of AI in the area of Rajasthan, and entire world will know you how AI will take the position and how AI will be more useful for decision making, for determination, and for discipline. So thank you very much. Thank you so much, sir. On behalf of MU Code, thanks a lot for all the entire faculty. Thank you very much. See you a next version of blockchain in next session by Mr. Harshvardhan Purohit. Thank you.